Hello and welcome back to our YouTube channel Sri Khiteshwar and Childcare Academy. In our previous section of class 10, we have started a chapter related to health, that is positive health. We have been discussing about this chapter for our past two sessions. I just want to make you revise the revision of our previous session, what we have studied in that. In previous session, as you know, that we came to know about how can the positive health can be achieved. You as well know about it, positive health. What is positive health? Positive health is a companionship when a person who is healthy as well as physically as well as mentally, then he can be, we will call him a healthy person, or we can call him as he is having a positive health. Like the same way, for positive health, there are requirements, certain requirements of things. What are the requirements? That we need to understand the function of our body, how our body is functioning. भाई हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. अगर हमें ये नहीं पता होगा, if we do not know about this thing, कि how our body is functioning, then it is not possible to be healthy. Like if I feel something wrong with my body, I must know about it. If I am not knowing about that thing, then it would be difficult for me to manage. In the same way, everyone is used to be needful to understand the proper functioning of body. What are the requirements? How much minerals your body is wanting? How much vitamins? How much protein it is required for your body? You should understand the functioning of your body properly. Then availability of nutritional food at a reasonable price. Yes, if in developing country like us, like India, if we get the food, if there is availability of nutritional food for everyone at a reasonable price, it is quite possible to achieve a positive health. It is quite possible to achieve positive health, because if we don't have a proper nutritional status, if we are not having a nutritional status, and if it is costly, then it won't be possible for people who are having low income. ठीक है, अगर लोगों की इनकम कम है और उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है फिर अचीव करना पॉजिटिव हेल्थ को. मेंटली people in India is like sound, they having a good interaction, there is a close knit relationship between the society as well as the families and the friends, so it is good for everyone. Now what we are to achieve is physical health. The problem is physical health. Close knit social systems and better communication improves developed nations. जो developed nations है वहाँ पर भी अगर close knit social system हो, सामाजिक संबंध हो, communication better हो लोगों के बीच में, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, लोग mentally content हो सकते हैं. अगर if a person is content with mentally, he is satisfied with all that he has, I mean with people around him, he is sharing things, he is loving people, affection, everything, pity, everything. When they are getting all the things, it is possible for those people, and along with them, it is possible for them to maintain mentally and physically both the health and achieve the positive health. Okay, so this is all about our previous revision that we have studied, and you also notice the medical facilities are also required. For medical facilities, there is a certain requirement of medical facilities on differential things like physical as well as intervention. Sometimes it is requirement of the surgical medical facilities also. So there should be intervention between them. Mostly the things which are being used, it should be in proper way and required quantity. Now let's move towards our text reading, and for that we will just see the glossary for it. See, decline. What is decline? Decline, a gradual or continuous loss. Decline का मतलब होता है gradually या continuous loss होना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का नुकसान, loss. Psychoanalyst. A person who treats mental patients. एक ऐसा व्यक्ति जो mental patients को treat करता हो by many analysis. वो क्या करता है? Analyze करता है उसको, उसके past को, of their past and
प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब कोई व्यक्ति कोई साइको एनालिसिस करे, वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के मेंटल पेशेंट को उसकी एनालिसिस करता है पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री, और उस एनालिसिस के बेसिस पर उसका इलाज करता है, ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग साइको एनालिसिस्ट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस्ट। साइकियाट्रिस्ट, 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 a doctor who studies and treats mental illness। एक ऐसा डॉक्टर जो ट्रीट करता है मेंटल इलनेस को, स्टडी करता है मेंटल इलनेस को, वो पढ़ता है, उसकी शिक्षा जो है उस ग्रहण में हुई है कि वो मेंटल इलनेस को पढ़ के और उसको एक्सप्लेन करता है, उसको समझाता है। देन कंपैशन, कंपैशन है पिटी। कंपैशन का क्या मतलब होता है? पिटी, दया, ठीक है। कंपैशन इज पिटी, जब हम लोग किसी पर पिटी करते हैं, if we are having पिटी, पिटी होना, किसी के ऊपर कंपैशन दिखाना। चलिए हम लोग हमारे टेक्स्ट को रीड करते हैं, और टेक्स्ट को रीड करते हुए साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे टेक्स्ट में क्या क्या आ रहा है। पेज नंबर 32, सेकंड पैराग्राफ, वाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग रीड करना, एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर। While most people in developed countries enjoy better health, ज़्यादातर जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एंजॉय बेटर हेल्थ, उनकी हेल्थ बहुत बेटर रहती है। The doctor of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facility। जो मोस्टली जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, उन कंट्रीज के अंदर लोग जो है वो फिजिकली काफी फिट है। We have already discussed about this thing। अगर हम लोग देखा जाए तो हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था कि जो बड़ी कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज है, उन कंट्रीज के अंदर जो फिजिकल हेल्थ है वो काफी बेटर है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर फिजिकल हेल्थ जो है वो काफी बेटर है, फिजिकल हेल्थ। इसका रीजन जो है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो एटीट्यूड देते हैं द फैसिलिटीज ऑफ मेडिकेशन। वो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स जो है उनका सजेशन ये कहता है कि देयर इज इंप्रूव्ड मेडिकेशन। क्या है? इंप्रूव्ड मेडिकेशन। ये लोग कहते हैं कि उन जगहों पर देयर इज इंप्रूव्ड मेडिकेशन फैसिलिटीज। इंप्रूव्ड यानी काफी बेहतर, अच्छी टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज है। देयर आर डेवलपमेंट ऑफ मेडिकेशन इन दोज कंट्रीज, देयरफॉर देयर पीपल आर हैविंग अ गुड फिजिकल हेल्थ। ऐसा उनका मानना है। किनका मानना है? इन डॉक्टर्स का मानना है। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर फिजिकल हेल्थ जो है वो इसीलिए इतनी बेटर है क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर जो मेडिकेशन फैसिलिटीज है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, दे आर सो मच डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड। दिस रीजन दे थिंक फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ दोज पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज। So let's begin with it and let's know that it is really true or not. They tend to ignore other important social factors such as the high standard of education, wealth, nutrition, cleaner environments enjoyed by most of these people. वो क्या करते हैं? वो लोग ये कर रहे हैं हाई स्टैंडर्ड्स। हाई स्टैंडर्ड्स किसके? हाई स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ऑफ एजुकेशन। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन के साथ वेल्थ है उनका पास, अच्छा खासा न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर प्राप्त हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेल्थ। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर प्राप्त हो रहा है, क्लीनर एनवायरनमेंट, क्लीनर एनवायरनमेंट, cleaner environment have been enjoyed by mostly these people। तो ये चीज तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ के इन चीजों को देख नहीं पा रहे। जरा ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर लोगों के पास क्या क्या एबिलिटीज है। देखिए डेवलप्ड कंट्री के अंदर अच्छी फिजिकल हेल्थ होने का रीजन जो है डॉक्टर
बताते हैं इम्प्रूव्ड मेडिकेशन फैसिलिटीज को, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ मेडिकेशन फैसिलिटी इम्प्रूव होने से अच्छी हेल्थ नहीं हो सकती, ये मानने वाली बात है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। देखो, सबसे पहली चीज़, दे आर डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज, सो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी हाई है। पीपल देयर आर हाईली एजुकेटेड, everybody and most of the population in that country is educated। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे educated हैं। I do not think कि कोई भी बंदा वहाँ पर illiterate होगा। Everyone gets education in these rich and developed countries। That's why they are developed, because they are able to give impart education to each and every citizen of their country। So high standard of education वहाँ पर है। Then everybody is educated and there is variety of jobs, work they tend to do। तो वहाँ पर वर्क बहुत अच्छा है, तो therefore they are having good wealth। When they are having good wealth, they are able to get proper nutrition। उन लोगों को proper nutrition मिल रहा है, and they are educated, wealthy nutrition। They are able to live in a cleaner environment। They are able to give government all the taxes, all the things, so that the environment should be clean। They tend to make their environment clean। They understand this thing, they understand the problems related to environment, they understand the problems which they will face later on because of the bad environment। So these all are also reasons behind the physical health of developed nations people। But according to doctors tend to ignore these facts, and they are just saying improved medical facilities। डॉक्टर्स का कहना है improve medical facilities। तो only medical facilities is not responsible for the physical health of these countries। Yes, I agree कि डॉक्टर का मानना सही भी है एक हद तक कि मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव है वहाँ पर, फाइन, बट ओनली मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी does not provide us the physical health। Okay, for this there is requirement of high standards of education, wealth, nutrition, as well as the clean environment। When the environment is clean, when the people living in a good environment, they are getting proper nutritional food for their work, they are having good wealth, so they do not have any tensions related to comfort of life, and along with that they are able to get high education। These all things also are a reason behind physical health of developed countries। developed countries में physical health भी काफी बेहतर है। देख लीजिए एक बार वापस से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें बाद में याद करने के हिसाब से देख लीजिए। चलिए, let's move on further। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations are mostly achieve better physical health than people in developing world, many of them are suffering from decline in basic human values। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात कही है कि हम लोग ये तो मानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि जो people in developed countries are having a good physical health as compared to the people in developing countries। People in developed countries are having good physical health, or you can say people in developed countries have achieved good physical health compared to developing nations। अगर हम डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में बात करते हैं तो जिन लोगों की फिजिकल हेल्थ जो है डेवलप्ड कंट्री की अच्छी है, बट they are having a decline, or you can call downfall in human
वैल्यूज। ऐसे लोग जो डेवलप्ड नेशन के अंदर बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास अच्छी हेल्थ अचीव कर ली गई है इन कंपेयर टू डेवलपिंग नेशन, बट those people are lagging behind or they are losing or declining the what human values. They are in shortage of human values. People over there, they are losing their human values, only basic human values. This frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illness, stress related diseases. और ये जो सारी चीजें हैं ये किसको कर रही है प्रेजेंट? ये सारी चीजें इसको प्रेजेंट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति जो ह्यूमन वैल्यूज में डिक्लिनेशन है, जिनका जो धीरे धीरे ह्यूमन वैल्यूज खो रहे हैं, जो ऐसे प्रे के शिकार बन रहे हैं, वो लोगों के अंदर क्या रिफ्लेक्ट होती है? प्रॉब्लम्स, कौन सी? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि लोगों में ड्रग डिपेंडेंस बढ़ता है। वेरी फर्स्ट थिंग, ड्रग डिपेंडेंस वहां बढ़ गया है। फिर आप देखो तो आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल illness, psychological and mental illness, ठीक है, and stress related disease, stress related disease, ठीक है। माना कि वो लोग जो है ह्यूमन वैल्यूज डेवलप्ड है, सॉरी फ्यूचर उसके अंदर फिजिकल हेल्थ के अंदर, बट वो लोग फिजिकल हेल्थ में डेवलप्ड होने के बावजूद उन लोगों के अंदर, क्योंकि ह्यूमन के जो बेसिक वैल्यूज होते हैं वो डिक्लाइन है, तो इसी वजह से धीरे धीरे उन लोगों के अंदर क्या होता है? ड्रग डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दे डिपेंड्स ऑन ड्रग, लॉट ऑफ पीपल यूज टू टेक ड्रग्स, ठीक है ना, बहुत सारा ड्रग्स का जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। देन अलॉन्ग विद दैट साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस का इंक्रीमेंट होता रहता है उन लोगों के अंदर। दे आर डिस्ट्रेस्ड, दे आर स्ट्रेस्ड आउट कंप्लीटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर क्रिएट होने लगती है। द रीज़न, द फैमिली बॉन्ड्स जो है, फैमिली बॉन्ड्स जो है वो वीक होते हैं, इससे फिर फैमिली टाइज ब्रेक होने लग जाते हैं। देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लॉस होने की वजह से इन चीज़ों का फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, ठीक है। अब ड्रग डिपेंडेंसी होगी, वो व्यक्ति अपने अंदर खोया रहेगा। साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस जिस व्यक्ति का है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है हमेशा, ना वो ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ता है, ना लोगों से बात करता है, फिर कुछ भी कह देता है, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज अगर होने लगती है तो स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस आने लगता है। फिर फैमिली बॉन्ड्स बिल्कुल वीक होने लगे वहाँ पर। देन जो एक हेल्दी कम्युनिकेशन जो होता है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन या कह लो इंटरेक्शन, वो कंप्लीटली गायब हो जाता है, लेस कॉमन हो जाता है। People like such people are not likely to have a good conversation with other people. They just avoid people. Okay, they otherwise they like to fight or something else would happen. तो इन चीज़ों की जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो they always seek only themselves for these things. They break the family bonds are weakened and broken because they say something and the things will be bad. Healthy communication and interaction is also less common in such places. To cope up with these difficult situations, people often turn to psychoanalysis or psychiatrists for professional help. Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believe it is the most important relief and the distressed person mind. All these things happen. ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजें को होने की वजह से क्या होता है? Now ये प्रॉब्लम जब आ जाती है तो इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है लोगों को। Now they have to resolve all such problems.
stress taken by the mental health illness. So for cope up with these to cope up, इन चीजों के साथ cope up करने के लिए क्या करना पड़ता है? They have to consult. What they have to do? They have to consult. They have to consult whom? They have to consult psychoanalyst, psychiatrist. ठीक है? तो जब ये चीजें खत्म होती हैं, जब वो चीजें होने लगती है, तो cope up with this thing, they have to consult with psychoanalyst, psychiatrist. They have to consult them for their better illness, to remove their illness, to remove their stress, to remove their problems. इन चीजों के लिए उनको इनके पास जाना पड़ता है. But in our country, our aged aunts, like buas and masis and dadis and nanis, all these aged aunts हम लोग बोल सकते हैं in English. aged aunts जो है वो लोग क्या करते हैं? यही जो वर्क करते हैं साइकोएनालिसिस्ट और साइकेट्रिस्ट, यही वर्क हमारी जो एजेड आंट्स है वो एक लव के साथ, मतलब विद लव, कंपैशन यानी पिटी, दया के साथ, ठीक है, सिंपैथी के साथ, दे सॉल्व आर सच प्रॉब्लम्स. ठीक है, वो जो स्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस जो हमें हो जाता है उसके बारे में बात करके, प्यार से फैमिली मेंबर की तरह बात करके उन चीज़ों को सुलझाने में हमारी मदद करता है. तो जो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जो लोग अपने क्या कहते हैं इसको साइकोएनालिसिस के पास जा रहे हैं to cope up with their stress related problems, to cope up with their mental illnesses and all these things, to take suggestions, they will be professional. वो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल रहेंगे. they won't be knowing you, ठीक है, as a person they will first going to know you and then they will going to resolve the problem. But our aged aunts, if we tell her, हमारे यहाँ पर जो aged persons है, if we share our feelings with them, if we tell them that what problems we are facing right now and what are the issues that is being faced by us, it is easy for them to resolve that problems. तो aged aunt जो हमें love, compassion के साथ हमारा जो problems है उसको बहुत आसानी से क्या करेगी? resolve करेगी. जो काम हमारी aged aunts कर रही है वही वहाँ पर साइकोएनालिस्ट से वो लोग कर रहे हैं और उनको फालतू पैसा दे रहे हैं. Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. Other factors associated with better physical health are being ignored. देखिए, अब क्या हो गया? अब बात ये आ गई कि देखा देखी की जो बात होती है, जो एक चीज़ को देखकर दूसरे को फॉलो करना होने वाला जो बात है, वो वाली बात अभी यहाँ आ गई. अब many of the people, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, यहाँ के लोग, many people of developing countries, बहुत सारे लोग जो है डेवलपिंग कंट्रीज के, वो लोग भी क्या करना चाहते हैं? they also wanted to achieve the highest standard of physical health. फिजिकल हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग भी फिजिकल हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं. जैसी फिजिकल हेल्थ डेवलप्ड नेशन के लोगों के पास है, वैसी फिजिकल हेल्थ को अचीव करने की कोशिश के अंदर दे टेंड टू, व्हाट दे टेंड टू डू, दे आर meeting doctors, they are meeting doctors for minor problems, for minor problems, वो बेसिक माइनर प्रॉब्लम्स जो घर के किसी होम रेमेडी से भी लिंक हो सकती है, उस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर से मिलते हैं. एंड टू मीट अदर डॉक्टर, एक तो वेस्टेज ऑफ मनी, अलॉन्ग विद दे आर गोइंग टू टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, वो अलग अलग ड्रग्स को फिर लेने लगते हैं. टू कोप अप करने के लिए ड्रग्स लेते हैं. ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ हैं यहाँ से रखते हैं, मतलब तो उन ड्रग्स और दवाइयों को लेते हैं. तो मीटिंग जो है डॉक्टर्स के साथ होगी माइनर इश्यूज के लिए. तो उसके साथ वो लोग भी, उन लोगों को भी यही लगता है कि वहाँ की फिजिकल हेल्थ, वहाँ की जो फिजिकल हेल्थ है वो इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव है. हम यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है इससे
कंटिन्यूसली अगर हम लोग कंटिन्यूस रहेंगे, हमारी मेडिकल लोगों के साथ वो रहेगा कनेक्शन, डॉक्टर्स के साथ मैं प्रॉपर चेकअप में रहूँगा, तो हो सकता है कि मेरी भी ठीक हो जाए। एक प्रॉपर चेकअप कराना एक टाइम पीरियड के अंदर वो एक अलग चीज़ है, बट एक हर छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास चले जाना, थोड़ा सा उंगली में दर्द है डॉक्टर के पास चले, सर में दर्द है डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना, तो गैस बन रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा, डॉक्टर के पास चले जाओ। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जो दवाइयाँ हैं वो ऑल्टर इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ के ऊपर, दे विल हैव अदर साइड इफेक्ट्स फ्रॉम दैट। और ये लोग भी ये भूल जाते हैं कि उन लोगों के पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और न्यूट्रिशनल रिलेटेड चीज़ों को भूल जाते हैं। दे टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स एंड सिर्फ उनको लगता है कि डॉक्टर्स ही हैं जो बेटर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी, और उनसे ही उनका बेहतर हो सकता है, जबकि ये गलत है, इट इज रॉन्ग। Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essential to improve their physical environments. For developing world, this is a tremendous and waste limit of resources. देखो, सबसे बड़ी बात, अब क्या हो रहा है इस भागम भाग में, इस दौड़ में क्या कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा पैसा जो है, बहुत ज़्यादा मनी जो है, मोस्ट ऑफ द मनी, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंडेड और या एक्सपेंडिचर जो है मनी का, वो होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए वो लोग फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा जो है यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर मनी ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ उनको ये करना चाहिए कि इस मेडिकल फैसिलिटीज जो रिक्वायरमेंट हो उतनी है और ज़्यादातर जो है हेल्दी फूड के ऊपर स्पेंड करें। किसके ऊपर करें? हेल्दी फूड के ऊपर, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के ऊपर। अगर इन चीज़ों के ऊपर रखा जाएगा, मनी एक्सपेंड किया जाएगा, यहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छी फिजिकल हेल्थ मिल सकती है। मगर लोग जो है मेडिकल फैसिलिटीज को प्रॉपर मानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो हमें फिजिकल हेल्थ दिलवाएगी, इस चीज़ को मानने के चक्कर के अंदर बहुत सारा पैसा जो है फैमिलीज इस पर खर्च कर रही है मेडिकल फैसिलिटीज को प्राप्त करने में। इंस्टेड इन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज में खर्च करने से बेहतर है कि वो हेल्दी फूड के ऊपर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर करे, ताकि वो सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हो सके, फायदा कर सके। अब एक तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, लिमिटेड पैसा होता है लोगों के पास, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से भी ज़्यादातर पैसा जो है मेडिकल पे खर्च किया जा रहा है, मेडिकल पे खर्च किया जा रहा है, तो फिर कैसे उनको प्रॉपर हेल्थ मिलेगी, कैसे वो प्रॉपर तरीके से गेन कर पाएंगे, ये कौन बताएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन मेडिकल फैसिलिटीज, there is need to understand that the environment and healthy food is more beneficial for our physical health. They are more workable, they are more beneficial to get physical health. So it is meaningful for us, it is very important to achieve this. I hope you have understood today's points, I hope you have got the points. So just read it once at your home and check out and find out the question and answers related to this chapter from question answers which have been there. And thank you, have a good day, stay safe, stay at home.